Hello everyone. The topic which we are going to discuss today is the electrocardiogram. If you are referring the Samalingam book, then it is given on the page number 598. So let me start. The topic in which in electrocardiogram we are going to discuss are the definition, uses of ECG, electrocardiographic grid, its speed, amplitude, speed of paper, ECG leads, types of ECG leads, waves of normal ECG, and the intervals and segments of the ECG. The first thing which we are going to discuss is the definition of ECG. The definition of ECG is the electrocardiography. The first is the definition of electrocardiography. The electrocardiography is the technique by which the electrical activity of the heart are being studied. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक टेक्निक है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को स्टडी कर सकते हैं. Electrocardiography and electrocardiograph are the two different things. Electrocardiography is the technique. Electrocardiograph is the instrument or a machine by which we can study or record the electrical activity of the heart. Okay, now the electrocardiogram. Electrocardiogram, it is the record or a graphical registration of the electrical activity of the heart, which occurs prior to the onset of the mechanical activity. Prior to the mechanical activity, it is the submerged electrical activity of all the cardiac muscle fibers recorded फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉडी. हम जो ECG करते हैं वो बॉडी के सरफेस पे से करते हैं क्योंकि हमको वहां पे इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रोड्स की हेल्प लेते हैं. नाउ द यूजेस ऑफ ECG. हम ECG को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? तो यूजेस इन डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग केसेस. दे आर दी हार्ट रेट हम मालूम कर सकते हैं ECG के थ्रू. हार्ट का रिदम मालूम कर सकते हैं. दूसरी चीज, ECG is also used in diagnosis of the following conditions. They are the abnormal electrical conduction. abnormal अगर हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है या कुछ भी एबनॉर्मलिटी है अगर हमारे हार्ट में या उसके फंक्शन में, तो हम वो देख सकते हैं. पुअर ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट मसल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज इस्चीमिया. हार्ट अटैक. coronary artery diseases, hypertrophy of the heart chambers. electrocardiographic grid. electrocardiographic grid का सीधा मतलब होता है the paper that is used for the recording of the ECG in a ECG or is also called as a ECG paper. जो पेपर होता है, मतलब हम उसको सादे इसमें बोल सकते हैं कि जो हम स्कूल्स में यूज करते थे मैथ्स के अंदर, ग्राफ पेपर की तरह ही एक रेड कलर का पेपर होता है जिसमें बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं और उसमें हम ECG के जो वेव्स होती हैं उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. नाउ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट ECG वेव्स इज प्लॉटेड इन द हॉरिजॉन्टली. वो हम हॉरिजॉन्टली प्लॉट करेंगे. हमारा नॉर्मल जो हमेशा से ग्राफ होता था तो हम इसे ये वाली लाइन को कहते थे दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल. तो यहाँ पे हम उल्टा करेंगे. हॉरिजॉन्टल पे हम एक्स एक्सिस लेने वाले हैं और वाई एक्सिस पे हम लेंगे हम वाई एक्सिस जो लेंगे वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे लेंगे एंड एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल पे लेंगे. तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे टाइम ड्यूरेशन. यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आएगा एंड एम्पलीट्यूड इज प्लॉटेड ऑन द वर्टिकली ऑन द वाई एक्सिस. यहाँ पे हम लेंगे एम्पलीट्यूड. सो जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 1 mm इज इक्वल टू 0.04 seconds and if 5 mm is equal to 0.20 seconds.
एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द ईसीजी वेव इज प्लॉटेड ऑन द वर्टिकली ऑन द वाई एक्सिस एंड 1 mm इज इक्वल टू होगा 0.1 milli volt and 5 mm is equal to 0.5 millivolt. Now the speed of the paper, the movement of the paper through the machine can be adjusted by two speeds. हम दो स्पीड पे उनको पेपर को रख सकते हैं कि वो पेपर आगे पीछे होगा, तो वो दो स्पीड्स पे होगा. एक है 25 mm per second, millimeter per second, and second is the 50 millimeter per second. Usually the speed of the paper is fixed on a 25 mm per second. If the heart rate is high, the speed of the paper is changed to the 50 millimeter per second. Now the leads of the ECG are, मैंने आपको जो अभी बताया कि x एक्सिस के ऊपर हम लेंगे ड्यूरेशन, सॉरी ये गलत हो गया, ये हॉरिजॉन्टल चाहिए था, ये वर्टिकल चाहिए था. सो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो थे लीड्स ऑफ द ईसीजी. हम 12 लीड्स वहां पे करेंगे. हम 12 लीड्स द बॉडी के सरफेस पे लगाएंगे. और जो लीड्स हैं वो डिवाइड होते हैं दो टाइप में, यूनिपोलर एंड बायपोलर लीड्स. पहले तो हम ये देख लें कि लीड्स कहाँ पे लगाए जाते हैं. तो राइट आर्म पे लगाएंगे, लेफ्ट आर्म पे लगाएंगे एंड लेफ्ट लेग पे लगाएंगे. तो हम इसको एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, राइड योर ग्रीन. राइड योर ग्रीन को हम और भी अच्छे तरीके से देखेंगे. यहाँ पे रेड जो है वो होगा, रेड कलर का जो इलेक्ट्रोड होगा वो होगा हमारे लिए, हमारा राइट आर्म के लिए, येलो फॉर द लेफ्ट आर्म एंड ग्रीन फॉर द लेफ्ट लेग. Now the leads are divided into two types, by unipolar and bipolar. The bipolar leads are also called as standard limb lead. They are like this. They have the two poles, positive and the negative. Now they are arranged on the, they are of three types. The bipolar leads are of three types: limb lead 1, limb lead 2, limb lead 3. Limb lead 1 is attached to the right arm, which is negative, and left arm, which is positive. Limb lead 2 is attached on the right arm, which is negative. Left leg is positive. Limb lead 3 is attached to the left arm, which is negative, and the left leg, which is positive. Unipolar leads are also called as augmented limb leads or augmented voltage leads. हम यहाँ पे यूनिपोलर लीड्स के अंदर में भी इसके दो टाइप्स है. पहला है यूनिपोलर लिम्ब लीड्स एंड सेकंड इज द यूनिपोलर चेस्ट लीड्स. तो पहले यूनिपोलर लिम्ब लीड्स देखेंगे. यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के अंदर दो टाइप्स है. पहला रहेगा, उसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड रहेंगे. पहला रहेगा एई, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड, जो कि एक ही लिम्ब को कनेक्ट किया जाएगा, और दूसरा है इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, मतलब आईई, वो वहां पे दो लिम्ब्स को अटैच किया, दो लिम्ब्स को कनेक्ट किया जाएगा इन अ सीरीज, इन अ रेजिस्टेंस. हमने रेजिस्टेंस जो वर्ड है वो 12th में फिजिक्स में पढ़ा था. नाउ द टाइप्स ऑफ unipolar leads are of three types. AVR leads. AVR leads के अंदर AE जो है, मैंने आपको अभी बताया, AE का मतलब है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड IE का मतलब है इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड्स. AE जो है वो कनेक्ट होगा राइट आर्म को, क्योंकि हम AE के अंदर के में एक ही लिम्ब को अटैच कर रहे हैं, तो ये होगा राइट आर्म को. और IE जो है इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड, IE जो कनेक्ट होगा वो दो लिम्ब्स को होगा, राइट आर्म को और लेफ्ट आर्म को और लेफ्ट लेग को. IVL lead is connected to AE is connected to L left arm, and IE is connected to right arm and left leg. AVR lead, इसमें AE जो है वो कनेक्ट होगा लेफ्ट लेग को, मतलब फुट को, और IE जो कनेक्ट होगा वो बोथ द लिम्स को कनेक्ट होगा, बोथ द अपर लिम्स को कनेक्ट होगा, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म. अब यूनिपोलर चेस्ट लीड्स. यूनिपोलर चेस्ट लीड्स जो है
वो उसको और भी नाम है वो है वी लीड्स एंड दी पेरिकार्डियल चेस्ट लीड्स। इसके अंदर में आई जो है वो 3 लिम्स को कनेक्ट होगा। इसमें रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 5000 ओहम रहेगा एंड आई इज प्लेस्ड ऑन द 6 पॉइंट्स ऑफ द चेस्ट, इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे जो 6 लोग हैं जो कनेक्ट होंगे, जो 6 इलेक्ट्रोड्स है वो कौन है? V1 to V6. Now V1 is connected on the fourth intercostal space, right to the right sternal margin को connect होगा। V2 जो है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन को कनेक्ट होगा। V3 जो है बिटवीन V2 एंड V4 होगा, वहां पे कनेक्ट करेंगे। V4 जो है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन। फिफ्थ जो कनेक्ट होगा लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। सिक्स्थ V6 जो है वो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द मिड एक्सिलरी लाइन। यहाँ पे V1, V2 और V3 जो है वो राइट वेंट्रिकल को डिनोट करेंगे। V4, V5 एंड V6 जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को डिनोट करेंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड जो है वो ग्राउंड और अर्थ इलेक्ट्रोड भी रहेगा जो कि राइट लेग को कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो हम ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल हम बना रहे हैं वो कैसा है? यहाँ पे हम ले रहे हैं राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग। घर में भी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रहती है उसके अंदर में हम एक अर्थिंग का तार डालते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारे अप्लायंसेस रहते हैं, तो वो करंट अगर एक्स्ट्रा करंट जो रहेगा वो अर्थिंग के अंदर हम डाल देते। तो वैसे यहाँ पे हमने जो एक डमी एक इलेक्ट्रोड लगाया है, इसको अर्थ इलेक्ट्रोड की जगह डमी इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। तो ये रहेगा लेफ्ट लेग को, राइट लेग को। नाउ अब हम देखेंगे वेव्स ऑफ द ईसीजी। वेव ऑफ द ईसीजी के अंदर आपको 4 चीजें दिखेंगी। पहले तो वेव्स दिखेंगे, सेकंड नंबर पे कॉम्प्लेक्सेस, थर्ड इज इंटरवल्स एंड फोर्थ इज द सेगमेंट्स। ये 4 चीजें आपको नॉर्मल ईसीजी में नजर आएंगी। लिम्ब लीड सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिपिकल वेव। लिम्ब लीड सेकेंड हमने कहा देखे? लिम्ब लीड सेकेंड हमने देखे बाइपोलर लीड्स के अंदर। यहाँ पे ये कनेक्ट होगा राइट आर्म मतलब निगेटिव एंड दी लेफ्ट लेग इज पॉजिटिव। यहाँ पे इसको बोलेंगे, ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे टिपिकल वेव। द नॉर्मल ईसीजी कंसिस्ट ऑफ P वेव, Q वेव, R वेव, S वेव, T वेव एंड QRST एक कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे हमको P वेव जो है वो एट्रियल कॉम्प्लेक्स नजर एट्रियल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेगी। QRS कॉम्प्लेक्स है और इसको और एक नाम है वो है इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। T जो है वो है फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स एंड QRST इज दी वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पहले जो वेव हम देखेंगे वो है P वेव। P वेव इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वेव एंड इट इज अ फर्स्ट वेव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रियल कॉम्प्लेक्स। इसके जो कॉजेज रहेंगे वो रहेंगे डायपोलराइजेशन ऑफ द एट्रियल मस्कुलेचर स्प्रेड फ्रॉम द SNO टू द एट्रियल मस्कुलेचर। अब इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 0.1 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार पूछते। एंड द प्रेशर एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ P वेव इज द 0.1 to 0.12 millivolt. Now the morphology रहेगी normally it is positive किन लोगों की वजह से रहेगा? lead 1, lead 2, AVF and V4, V5 and V6 की वजह से ये पॉजिटिव रहेगा, अपराइट रहेगा। जब वो ईसीजी के अंदर हम देखते रहे वो ऐसा रहता तो ये पॉजिटिव रहता। इसके बाद में जब वो निगेटिव होगा तो निगेटिव वो किसकी वजह से होगा? AVR की वजह से, क्योंकि वो इन्वर्टेड है। इसके बाद में कॉम्प्लेक्सेस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट इसमें। थैंक यू।